friends, welcome back to my channel Learn Easy. In this video, we will finish up with the last exercise from chapter 2 of whole numbers from class 6 NCERT maths textbook. Let us begin. If you haven't screened the previous videos where we have solved exercise 2.1 and 2.2, kindly have a look in the description box for the links. Let us start. Also, if you like this video, please hit the like button and share this video with your friends. And if you haven't subscribed my channel yet, please press the bell icon just below this video to get the updates. Let us start. Exercise 2.3. Which of the following will not represent 0? Here we have to tell which numbers will not represent 0. So how we will solve, let us understand. If I look at the first part, right? So 1 plus 0 is, let me check how, कैसे करेंगे हम इन वाले questions को. 1 plus 0, क्या वो represent करेगा कभी 0? कैसे? हमें 0 into 0 चाहिए, right? So that is not possible, so this will not represent 0. B की बात करते हैं. 0 plus 0 into 0 is 0. Yes. Let's understand from the C part. 0 upon 2. 0. Yes. So D part कुछ नहीं करना, simple हमको operations apply करने. 10 minus 10 2. That is 10 minus 10 is 0 upon 2, which will give me 0. So only A part. So I'm writing the answer here. Only A part, that is 1 plus 0, will not represent 0. Right? Understood? ये थोड़ी सी शॉर्ट बनेगी वीडियो, इसको एंड तक देखें तभी पूरे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे. Second, if the product of two whole numbers is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through the examples. So how will you justify? As we know, the product of any whole number and 0 is always 0, right? ये तो हमको ये ऑलरेडी पता है कि अगर कोई भी हम होल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, राइट? तो हमको बताना है कि क्या दोनों नंबर 0 होने चाहिए या कोई एक नंबर 0 हो सकता है. तो इन केस ऑफ प्रोडक्ट क्लास इट इज ऑलवेज एनी वन ऑफ द नंबर कैन बी 0. कैसे? देखो, 0 into 0 is 0. एग्जाम्पल्स ले रही हूँ मैं, ठीक है. 1 into 0 is also 0. 2 into 0 is also 0. 91 into 0 is 0, right? So that means yes, if the product of two whole numbers is 0, then one or both of them must be 0, right? या तो एक या दोनों नंबर्स भी 0 होंगे तो भी बहुत अच्छा है. अगर एक नंबर भी 0 होगा तो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम उसको प्रोडक्ट उसका 0 बना सकते हैं, राइट? आए थे नेक्स्ट पे. If the product of two whole numbers is 1, क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो होल नंबर्स. कैसे? होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर is 1. Can we say that one or both of them will be 1? क्या दोनों 1 होने चाहिए या सिर्फ एक भी 1 होगा तो चलेगा? देखो कैसे करते हैं. इस ऐसे क्वेश्चंस में काउंटर एग्जांपल लेते हैं, राइट? अगर मैं दोनों नंबर 0 लेती हूँ नहीं होगा, दोनों नंबर्स 1 लेती हूँ तो होगा. कोई एक नंबर अगर 1 लेती हूँ तो भी नहीं होगा. अगर मैं दोनों नंबर्स 1 नहीं लेती तो भी नहीं होगा. सो इट मीन्स यस, ये मेरे एग्जाम्पल्स हो गए जो हमारे को क्वेश्चन ने बोले लिखने के लिए. यस, बोथ नंबर्स शुड बी 1. दोनों नंबर्स को 1 होना जरूरी है, तभी हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी ट्रू कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1, देन बोथ ऑफ द नंबर्स शुड बी 1, राइट? ओके,
This is a good question. Find using distributive property. Before we start, let me mention the distributive property for all of you. It says A into B plus C, which is equal to A into B plus A into C, right? Also A into B minus C is equal to A into B minus A into C, right? So अब हमको इस तरीके से देखते हैं 728 इंटू 101 इस तरीके से करना है कि हमारा जो भी मल्टीपल ऑफ 10 है इस तरीके से ब्रेक हो जहां पर हम या तो उसमें 10 प्लस 1 या 100 प्लस 1000 प्लस या 10 माइनस 100 माइनस 1000 माइनस। तो यहाँ पे इट्स वेरी मच एविडेंट कि हम 101 को कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 101 मतलब 100 प्लस 1। Let us open the bracket 728 into 100 plus 728 into 1. So 728 multiplied by 100 is 72800 plus 728 into 1 is 728, right? So we have got the answer as 73528. Okay, if I come to the B part, 5437 into 1001. So obviously 1001 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? 1000 प्लस 1। यहाँ पे बाय चांस दोनों नंबर्स प्लस वाले आ गए हैं। अब आपके पास आगे देखना माइनस वाले भी आएंगे। Same bracket will be opened. I am going to multiply while opening the brackets 537 into 1000 plus 5437 into 1. That means 5437 into 3 zeros plus 5437. So my answer will be 544237. I have solved in the rough column, right? So these are the two answers for A and B parts, right? Understood? बढ़े आगे? Okay. C part देखिए अब हमारे पास आया थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। C part 824 into 25। यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 100 के या 10 के पास आए। मल्टीपल ऑफ 10 है लेकिन हमारे पास क्या है? 20। तो 20 को 5 को हमने कर दिया 20 प्लस 5, राइट? सो इट विल बी 824 into 20 plus 824 into 5. Solving both of them. So 824 into 20 is 16480 plus 4120. That means 20 into 600. Right? Okay, let's move to the D part. 4275 into 125. So here we do not have any other option of let's do it as 100 plus 20 plus 5. 3 में भी ब्रेक कर सकते हो आप, ठीक है? 4327 मल्टीप्लीकेशन आसान करनी है हमें कैसे भी करके। सो 4327 into 100 plus 4327 into 20 plus 4327 into 5. While we will solve this, we will get the answer as 432700 plus 8. Okay, it is not the correct answer. यहाँ पे हमने थोड़ी डिजिट लिखने में गड़बड़ कर दी है। I have misunderstood and taken it as so it is 4275 4275 4275 4275. So 4275 is 427500. Okay, then we have 85500 plus 21375. That is 534375. That means ये हमारा आंसर आ गया। आंसर आ गया हमारे डी पार्ट का। यस, okay, let's move forward to the E part, that is 504 into 35. That means 35 को अब हम कैसे करेंगे? 504 को ब्रेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल मैंने आपको बताया 10 का या 100 का या 1000 का। तो 504
इज इक्वल टू 500 प्लस 4 इंटू 35, ब्रैकेट में करेंगे मल्टीप्लाई, राइट. सो वी विल गेट 35 इंटू 500 प्लस 35 इंटू 4. दैट मीन्स 35 इंटू 500 कितना हो गया, 17,500 प्लस 140, that means 17,640 is the correct answer for the E part, right. कुछ नहीं कर रहे हम, बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं. a प्लस ए इंटू बी प्लस सी में a इंटू बी प्लस ए इंटू सी कर रहे हैं. माइनस होगा तो माइनस लगा देंगे प्लस की जगह. दैट्स इट. बस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मल्टीपल्स ऑफ 10 या 100 या 1000 या 10 या 100 या 1000 के कॉम्बिनेशन में ब्रेक कर रहे हैं. दैट इज माइनस प्लस के कॉम्बिनेशन में हम क्रिएट कर रहे हैं न्यू टर्म्स, राइट. अंडरस्टूड. करें लास्ट क्वेश्चन. Okay, so the last question we have here is study the pattern. हमें patterns study करने हैं, right. 1 into 8 plus 1 is 9, 12 into 8 plus 2 is 98, 123 into 8 plus 3 is 987. ऐसे करके write the next two steps. Can you say that how does the pattern. इन्होंने क्या करा, पहले 1 था 1 2 करा, फिर 1 2 3 करा. 1 था 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5. तो हमारा बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, राइट. उसके बाद कैसे 8 8 8 से कर रहे हैं इंटू 8, 1 2 3 4 5, तो 6 हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट स्टेप. और सेकंड स्टेप इसी का बन जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7, राइट. तो कैसे बन रहा है, 9 9 9 9 इज कांस्टेंट, दोनों में 9 आ रहा है, ठीक है, तीनों में. फिर लास्ट क्या था, 9 8 7 6 5, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, 8 8 8 फिक्स था, फिर 7 7 फिक्स हो गया, 6 के बाद 5 आ गया. अब यहाँ पे 5 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 6 7 9 8 7 6 5 4 3, राइट. तो एक एक डिजिट यहाँ तक एंड में बढ़ती जा रही है, नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर से चलते आ रहे हैं. तो एक बार ये आंसर को अपने चेक करते हैं. तो हमारे पास 6 8 प्लस 6 और हमारे पास 8 प्लस 7. हिंट जो है आप नहीं चाहो तो नहीं भी यूज करो, इट इज योर विश. मैंने अभी आपको बताया कैसे इन्होंने, ये देखो 8 कॉमन था तो मैंने 8 को फिक्स रहने दिया, राइट. ये वाला हमारा 8 फिक्स रहने दिया. उसके बाद हमारे जो नंबर्स चल रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास नंबर्स आ रहे थे. तो कैसे आ रहे थे, 1 2 3, ठीक है. फिर आ रहा था 4 5, तो मैंने उसको बना दिया 6 और बना दिया 7. तो हमारे पास 9 9 9 सब में था, 8 8 सब में था, 7 7 6 के बाद 5 के बाद 4 आता है, 5 4 3 आ गया, राइट. सो दीज आर द 2 steps फॉर द पैटर्न टू राइट. सो कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स. तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा, यही आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I hope this video helps you a lot to complete your second chapter from your NCERT maths textbook. So chapter 2 is over. Next we will start with chapter number 3 with playing of numbers. So please, you can also find us on Facebook as Learn Easy. Share this video with your friends and don't forget to subscribe the YouTube channel. Please check the description box for the links to the various video. Also we have specialized maths playlist where we have topic wise discussion for the maths topics. Thank you.